My name is Nazia Ashfaq and I am your course instructor for the course of psychopathology for this semester. And today it's our 13th lecture for this semester, and the topic we're going to cover today is substance abuse disorders. So most of you would already be familiar with this term, substance abuse disorder. Actually the term consists of 3 words, and we'll basically discuss 3 of these words. The term disorder, as we have already discussed in our first class, is something when something is going out of order or is not functioning in the order. And substance is simply a term, substance or material or element or a physical thing. Now the basic focus you need to do here is the term abuse. Now abuse is a term which comes from 2 words, use and ab or ab. Now basically abuse means when something is not used properly or is used in something which is not the expected way to use it. So substance abuse disorders basically is a class of psychological disorders in which some material, some element or some toxins are not used in the way they are not used in the way they are expected to, or are used in an overly fashion. Now what these substances are, basically the substances are drugs, either medical drugs or narcotic drugs. Now here you need to understand the difference between narcotic and medical drugs. नारकोटिक ड्रग्स हैं वो ड्रग्स जिनको हम आम उर्दू ज़बान में नशा आवर अद्वियात कहते हैं, यानी जिनसे नशा क्रिएट होता है. दोज आर नोन एज नारकोटिक ड्रग्स एंड दे आर कॉजिंग इंटॉक्सिकेशन इन द पर्सन. वेयरएज मेडिकल ड्रग्स जो हैं ये वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं जो इंसान ओवरली यूज़ करता है एंड गेट्स इनटू एडिक्शन और अ डिसऑर्डर. So now we're going to discuss some basic description of the substance abuse disorder. The first thing you need to understand is substance abuse disorder is a disorder which is commonly known as drug addiction. अब ड्रग एडिक्शन के 2 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ दैट दिस इज़ अ डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स अ पर्सन's brain and behavior. Now how this is affecting a person's brain and behavior, because any drug is taken when a person takes is enter into the bloodstream of the person. Now through bloodstream that drug is traveling into every part, every organ and every cell of the person, and obviously is also entering into the brain of the person. Now when that drug enters into the brain of the person, obviously it affects person's cognition, his mental processes, his thinking, his memory and all kind of mental activities. This is the first component of drug addiction, and when it is affecting the cognition of the person, obviously it's affecting the behavior of the person. Now the second component of drug addiction is that this is a disorder or a disease in which the person is not able to control the usage of that material or substance. यानी उस इंसान का इस चीज़ पे इख्तियार ना हो कि वो चीज़ लेना छोड़ सके या उसकी मिकदार कम कर सके या उसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सके, ना उसका गैप कम ज़्यादा कर सके, उसकी लेने की ड्यूरेशन ना कम ज़्यादा कर सके. दिस टाइप ऑफ इनएबिलिटी इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर. अब ये जो ड्रग्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. कॉमनली अल्कोहल यूज़ होती है, मैरिजुआना यूज़ होती है, निकोटीन इस्तेमाल होती है, हेरोइन, ये सारे कॉमन ड्रग्स हैं जो आमतौर पे ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. अब थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें इसके कुछ रूट समझने पड़ेंगे कि ये ड्रग एडिक्शन जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती है. तो अगर हम नारकोटिक ड्रग्स की बात करें विच आर नोन एज नशा आवर अद्वियात ऑल्सो, उनका रूट जो है वो सोशल सिचुएशंस है. यानी दे कुड इवन कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स और अ सोशल ग्रुप और somebody just made you start that and then it goes on and on and on. Whereas the medical drugs का जो अब्यूज़ है या एडिक्शन है वो कहाँ से ओरिजिनेट या स्टार्ट हो रहा होता है. somebody, some relative or some person has prescribed or suggested you that medicine for some medical reason. आप एक दफ़ा लेते हैं, वो लेते लेते जो है वो आपको आराम आना शुरू होता है, फ़ायदा होने लग जाता है या उसका कोई और इफ़ेक्ट होने लग जाता है. And the ease that taking of that drug is causing you to incline to be using it more and more and more often, thus leading the person towards addiction of that medical drugs. ठीक है. अब जो मेडिकल ड्रग्स जो आमतौर पे सब हो रहे होते हैं यूज़
एडिक्शन में वो कॉमनली पेन किलर्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, या फिर स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मेडिकल ड्रग्स हैं जो कि एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एडिक्शन में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो है विड्रॉल सिम्टम्स। Basically what happens in process of addiction, that the person starts with a certain quantity of the drug and he gets certain desired effect. Now after some time that particular quantity of the drug, it stops or it reduces giving the person the same effect which that quantity of the drug was giving priorly. फिर होता क्या है कि इंसान वही इफ़ेक्ट लेने के लिए उस ड्रग की मिकदार थोड़ी सी बढ़ाता है। जब मिकदार बढ़ाता है तो कुछ अरसे के लिए वो मिकदार जो है वो इफ़ेक्ट देती है, कुछ अरसे बाद वो मिकदार फिर कम होना शुरू हो जाती है, वो कम महसूस होने लग जाती है, उसका असर ख़त्म होने लग जाता है, उसका असर कम होने लग जाता है। अब इंसान को जो है वो उस इफ़ेक्ट एक सर्टन इफ़ेक्ट चाहिए होता है, वो इफ़ेक्ट लेने के लिए वो फिर से ड्रग की क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो बेसिकली एक साइकिल चलता रहेगा, वो क्वांटिटी बढ़ाएगा, इफ़ेक्ट मिलेगा, कुछ अर्से बाद इफ़ेक्ट मिलना बंद हो जाएगा, वो फिर क्वांटिटी बढ़ाएगा, फिर कुछ अर्से इफेक्ट मिलेगा, फिर इफेक्ट मिलना बंद हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, वो फिर क्वांटिटी बढ़ाएगा, बिकॉज ही वांट्स दैट इफेक्ट। और अगर वो क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा या वो ड्रग पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा, तो उसके रिजल्ट में जो सिम्टम्स आएंगे दे आर नोन एज विड्रॉल सिम्टम्स। नाउ दीज विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं और ये साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इफ देयर फिजिकल में एग्जांपल्स किस तरह की आ सकती हैं, शिवरिंग ऑफ द बॉडी एक्स, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। एंड वेयर एज साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इन केस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स आर कंसर्न्ड, दे कुड बी ईदर एंजाइटी, डिप्रेशन, एजिटेशन, एंगर प्रॉब्लम्स, एंगर आउटबर्स्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट हो सकती हैं विड्रॉल सिम्टम्स का। ओके, अब हम चलते हैं थोड़े से सिम्टम्स एंड क्राइटेरिया पे, यानी वो साइंस जिनको देख के आप अंडरस्टैंड कर सकें कि अ पर्सन इज़ ईदर इनटू द एडिक्शन और इज़ मूविंग टूवर्ड्स एडिक्शन। अब पहला जो साइन है, रादर इज़ इनटू द एडिक्शन, पहला जो साइन है कि उस ड्रग को लेने की जो ज़रूरत है वो रेगुलर बेसिस पे उसको पड़े, ही इज़ नॉट एबल टू फंक्शन विदाउट दैट ड्रग। दूसरा साइन क्या है कि हैविंग इंटेंस अर्जेस, कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो उस ड्रग की, और उस ड्रग के ना मिलने की वजह से जो है वो इंसान बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, ही कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग। तीसरी चीज़ कि ओवर टाइम नीडिंग मोर ऑफ द ड्रग टू गेट द सेम इफेक्ट। जो चीज़ अभी हमने विड्रॉल में डिस्कस की थी, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है कि कुछ अरसे बाद जो है वो वही इफेक्ट लेने के लिए वो ड्रग की अमाउंट बढ़ाएगा। दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइन ऑफ एडिक्शन। ठीक है, चौथा साइन क्या है कि उसकी क्वांटिटीज जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। स्टार्ट उसने एक सर्टेन अमाउंट से किया होगा उस ड्रग का, कुछ अरसे बाद वो ड्रग का अमाउंट इतना शदीद बढ़ चुका होगा कि उसको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि वो अमाउंट कितना ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट साइन और सिम्टम क्या है कि वो इंसान इस चीज़ की अश्योरिटी रखेगा अपनी लाइफ में कि उस ड्रग का सप्लाई बंद ना हो जाए या कम ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए उसकी लाइफ में। ठीक है, उसके अलावा जो साइन है वो ये है कि वो उस ड्रग को ख़रीदने के लिए किसी ना किसी तरह ही इज़ गोइंग टू अरेंज मनी, ईदर थ्रू लीगल मीन्स और थ्रू इलीगल मीन्स, ही जस्ट नीड्स टू बाय दिस। और बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन ड्रग लेने के लिए पैसे दे आर अरेंजिंग, अभी हमने कहा थ्रू लीगल मीन्स और इलीगल मीन्स, एंड इन मोस्ट केसेस दिस इज थ्रू इलीगल मीन्स, क्योंकि व्हेन द ड्रग एडिक्शन गेट्स क्रॉनिक the person is not able to function, and when he is not able to function he can't earn, when he can't earn so he is not getting money through legal means. So in most of the cases the drug addicts are getting money from illegal means. The next sign or symptom which is important is कि उस drug addiction की वजह से उसकी life की responsibilities उससे पूरी ना हो रही हो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी पर्सनल लाइफ की भी हो सकती हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की भी हो सकती हैं, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की हो सकती हैं। लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निगलेक्ट हो रही हों या उसका काम ख़राब हो रहा हो या उससे प्रॉपरली मैनेज ना हो रही हो, दिस इज़ अ मेजर साइन दैट द पर्सन इज़ इनटू एडिक्शन। उसके बाद अगला साइन या क्राइटेरिया जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगे या जिसको आप कंसिडर करेंगे कि वो ड्रग जो है वो छोड़ा ना जाए,
बावजूद इसके कि उस इंसान को पता है कि ये उसको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे, बट स्टिल द पर्सन इज़ नॉट एबल टू क्विट और इज़ नॉट एबल टू लीव और इवन नॉट एबल टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट साइन क्या है कि ड्रग हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, सच एज यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वो स्टीलिंग है, यानी वो चोरी डकैती किसी भी तरह का क्राइम जो है उस ड्रग को हासिल करने के लिए वो करने के लिए तैयार होगा और वो करेगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू हेजिटेट फ्रॉम दैट ड्रग बिकॉज हिज प्रायोरिटी इज गेटिंग दैट ड्रग इन टू हिज लाइफ। नेक्स्ट साइन क्या है कि वो रिस्की बिहेवियर करेगा उस ड्रग के इन्फ्लुएंस में, और ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब आप व्हेन द पर्सन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग तो रैश ड्राइविंग हो रही होती है और उसमें के नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन कॉमन साइन और क्राइटेरिया फॉर द एडिक्शन। नेक्स्ट साइन और क्राइटेरिया जो आप इम्पोर्टेंस जिसकी है वो है स्पेंडिंग अ गुड डील ऑफ टाइम गेटिंग द ड्रग। ठीक है, यानी कि उस ड्रग को लेने पे, उसको लाने में, उसके पूरे प्रोसेस पे उसका बहुत ज़्यादा टाइम, बल्कि मोस्ट जो क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके केस में तो उनकी ज़िंदगी में और कोई काम बच ही नहीं जाता। ऑल दे आर डूइंग इज स्पेंडिंग देयर टाइम into thinking about drug, getting the drug, bringing the drug and then consuming the drug and then having the effect of the drug. This is their life. ये एक बड़ा important sign है। उसके बाद next sign क्या है कि the person is failing in his attempts to stop using the drug, कि वो बार बार जो है वो उस कोशिश में फेल होता है कि वो ड्रग छोड़ सके, वो छोड़ नहीं सकता, वो उसको छोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा, और अगर वो छोड़ने की कोशिश करेगा तो ही इज़ गोइंग टू गो थ्रू विड्रॉल सिम्टम्स। अब विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कुछ साइंस जिनसे आप ये असेस करेंगे कि वो इंसान जो है वो ड्रग यूज़ कर रहा है या फिर इंटॉक्सिकेशन यानी नशे में है या नशे की कैफियत में है, ये आप कैसे असेस करेंगे। यानी सिंपली अगर आपने किसी को ये देख के जज करना है कि क्या इस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो नशे में है, वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, तो ये इसके क्या साइंस हैं। पहला साइंस है सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी उसको जो है वो दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी, अपने इर्द गिर्द हर चीज़ उस इंसान को अच्छी लग रही है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन दैट ही इज़ अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। दूसरा है हाइटेंड सेंस ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड टेस्ट परसेप्शन, कि चीज़ें नज़र भी अच्छी आएंगी, सुनाई भी अच्छी देंगी, टेस्ट में भी अच्छी लगेंगी, एवरीथिंग इज़ गुड इन हिज लाइफ। थर्ड साइन इज़ इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह ड्राई हो जाएगा, उसका बैलेंस जो है वो ख़त्म होने लगेगा या रिड्यूस होने लगेगा, उसकी कोऑर्डिनेशन जो वो सोच रहा है और जो बॉडी कर रही है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रिड्यूस हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा वो उस टाइम पे, उसको चीज़ें याद नहीं आ रही होंगी, वो चीज़ें भूल रहा होगा या चीज़ें कंफ्यूज कर रहा होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है स्लोड रिएक्शन टाइम। व्हाट एग्जैक्टली स्लोड रिएक्शन टाइम क्या है कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स देने के लिए जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम में वो इंसान वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा। दीज वर सम कॉमन साइंस जो हमने स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन के लिए डिस्कस किए, एंड सम साइंस आर स्टिल लेफ्ट। उसके बाद जो अगला साइन है वो है एंजाइटी और पैरानॉइड थिंकिंग, कि बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर वो शक करने लग जाएगा या शक वाली सोचें आने लग जाएंगी उसको। उसके बाद है कि कैनबिस ऑर्डर ऑन क्लोथ्स और येलो फिंगर टिप्स, यानी एक सर्टन स्मेल आने लग जाएगी उस पर्टिकुलर ड्रग की, या इन केस ऑफ कैनबिस जो है वो फिंगर टिप्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। And the next important sign is exaggerated cravings for certain foods at unusual times, कि बग़ैर खाने के औकात के या बग़ैर उन औकात पे जिन पे उसको उसकी खाने की रूटीन होगी, उसको शदीद किस्म की क्रेविंग्स होंगी खाने की, और वो खाना जो है वो कोई ख़ास टाइप ऑफ फूड होगा, नॉट एनी फूड। ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने साइंस डिस्कस किए फॉर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब हम देखेंगे सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रीसेंट यूज़। रीसेंट यूज़ यानी अभी कुछ उससे पहले से अगर वो यूज़ कर रहा है तो ये आपको कैसे पता चलेगा। इसमें पहला साइन है यूफोरिया। यूफोरिया हमने डिस्कस कर दिया कि पहले क्या होता है। उसके बाद है इंक्रीज सोशबिलिटी,
कि पहले से बहुत ज़्यादा वो सोशल हो जाएगा। अब वो सोशल जो हो रहा है वो किस लिए और किस तरह हो रहा है, क्योंकि वो उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहा है जो उसके ड्रग का सोर्स हैं। इट कुड बी द ड्रग डीलर, इट कुड बी द ड्रग प्रोवाइडर, इट कुड बी द कंपनी विच इज़ with him during that addiction or while taking those drugs। उसके बाद है एनर्जी लेवल बहुत हाई लगेगा शुरू में, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग क्लियरली, कि सोचने समझने में उसको प्रॉब्लम होगा, मसल कंट्रोल जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पैरानोया यानी शक, पैनिक अटैक्स होंगे, हेलुसिनेट करेगा, डिलीरियम होगा यानी चीज़ें याद नहीं रहेंगी उसको, और साइकोटिक एंड वायलेंट बिहेवियर। अब ये सारे वो सिम्टम्स थे जो रीसेंट, अगर बिल्कुल शुरू के टाइम है उसका अब्यूज़ का, ये उस वक्त इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ तक बेसिकली हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन होता क्या है, उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लिए, उसके रूट्स कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कि वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, टाइप्स किस किस तरह के ड्रग इन्वॉल्व होंगे, इधर इट्स मेडिकल ड्रग और नार्कोटिक ड्रग। फिर हमने उसके कुछ सिम्टम्स और क्राइटेरिया देख लिया कि आप असेस कैसे करेंगे एडिक्शन को। फिर हमने कुछ साइंस देखे कि वो आप ये असेस कैसे करेंगे द पर्सन इज़ इंटॉक्सिकेटेड एट दैट सर्टेन टाइम। फिर हमने रीसेंट यूज़ को कैसे असेस करना है ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स, कि मोस्टली किस तरह के ड्रग्स जो हैं उनके लोग एडिक्ट होते हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कैनबिस की, जैसे कैनबिस, हेरोइन, ये कुछ इस तरह के इलीगल बेसिकली, ये अल्कोहल जो, अब अल्कोहल तो इज़ लीगल इन लॉट ऑफ कंट्रीज बट स्टिल इट्स इलीगल इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो पहले तो ये टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, और ये मेनली वो ड्रग्स हैं जो इंटॉक्सिकेशन यानी नशा कॉज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप है दैट इज़ नोन एज K2 स्पाइस एंड बाथ सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि ये बहुत सारे स्टेट्स में इलीगल हैं, और ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत डेंजरस किस्म के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इनका कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये हैं स्पाइस एंड बाथ सॉल्ट्स। बेसिकली ये सिंथेटिक इन नेचर होते हैं, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, कि ये एक डेंजरस जोन है ड्रग्स की। ठीक है, इसमें हर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं, ये स्मोक भी किए जाते हैं, ये ड्रिंक भी किए जाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन ड्रग्स के बारे में है कि ये जब प्रोडक्ट बन रहा होता है या जब ये मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं या मार्केट हो रहे होते हैं, तो ये ऐसे बेचे जाते हैं या ऐसे सेल किए जाते हैं कि ये नेचुरल या कोई हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और ये हार्मलेस हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। बट एक्चुअली ये हार्मफुल भी होते हैं और ये नेचुरल भी नहीं होते, और ये इंटॉक्सिकेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर पुटिंग द पर्सन टूवर्ड्स द एडिक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं वो हैं बार्बिटूरेट्स और हिप्नोटिक्स। अब बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये आम तौर पे इस्तेमाल तो होते हैं डिप्रेशंस के तौर पे। ठीक है, डिप्रेशंस किस चीज़ के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, कि ये जो ड्रग्स हैं ये इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आमतौर पे मार्केट में रिलैक्सेंट्स के तौर पे मिल रहे होते हैं और लोग इनकी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टार्ट होती है बेसिक रिलैक्सेशन से कि जी द पर्सन इज गोइंग टू फील रिलैक्स्ड, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इनके पीछे। वंस द पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग दैट, द पर्सन गेट्स यूज्ड टू ऑफ दैट आर्टिफिशियल रिलैक्सेशन। तो इसलिए इनको जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशंस भी कहा जाता है, और आमतौर पे ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं व्हेन अ पर्सन इज़ हाईली स्ट्रेस्ड। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ देर के लिए जो है वो इंसान को भुला देते हैं कि उसकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, वो किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और वो जो स्विच ऑफ फेज होता है बेसिकली दैट इज़ सो डिज़ायरेबल विच enables that person to again and again enter into the zone of these drugs. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोकेन एंड अदर स्टिमुलेंट्स। अब कोकेन और अदर स्टिमुलेंट्स जो हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टिमुलेंट बेसिकली है क्या। स्टिमुलेंट कोई भी टाइप का वो ड्रग है जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा एक्टिव और हाई स्टेट में ले जाए,
और उसको ये फील हो कि उसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया और वो बहुत सारे काम जो वो वैसे नहीं कर सकता था वो अब कर लेगा। तो ये इस तरह के ड्रग्स को कहते हैं स्टिमुलेंट्स को। इनका भी यूजेज जो है वो बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह स्टार्ट होता है, स्टिमुलेंट्स की तरह जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये भी हिप्नोटिक्स की तरह स्टार्ट होते हैं स्टिमुलेंट्स भी, कि ये किसी मकसद को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड देन द पर्सन गेट्स इनटू दैट एडिक्शन, कि ये आपको वो एक हाई एनर्जी लेवल फेज में ले जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही है, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है और हर चीज़ कंट्रोल में है, और उस वजह से जो है वो ये लोग ये ड्रग्स ले रहे होते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स इज हेलुसिनोजेंस। अब हेलुसिनोजेंस जो हैं वो डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन टाइप है वो है LSD और PCP। हेलुसिनोजेंस जो हैं ये उस तरह के ड्रग्स हैं जो एक ऐसे स्टेट में ले जाते हैं व्हेन पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, ठीक है। ये इस तरह के ड्रग्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग इज़ इनहेलेंट्स। अब इनहेलेंट्स क्या चीज़ हैं? ये सिंपली वो ड्रग्स हैं जो इनहेल किए जा रहे हैं। कुछ ड्रग्स जो होते हैं जो पहले वाले हमने डिस्कस किए वो ओरल होते हैं, यानी वो थ्रू माउथ लिए जाते हैं। इनहेलेंट्स जो हैं ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको इनहेल किया जाता है, यानी सांस के थ्रू या नाक के थ्रू इनको बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है। अब इनमें बहुत कॉमन क्या है, कोई पेंट हो गया, थिनर्स हो गए। आपने अपने लोग देखे होंगे जिनको बहुत आदत होती है कि वो थिनर को सूंघते हैं या वो पेंट को सूंघते हैं या वो ग्लू को सूंघते हैं ना, वो बेसिकली दैट्स नॉट स्मेलिंग, वो इनहेल कर रहे होते हैं, उस ड्रग को अपने अंदर एंटर कर रहे होते हैं थ्रू दैट एयर, दे आर इनहेलिंग दोज ड्रग्स, ठीक है। इसमें गैसोलीन बहुत कॉमन है, क्लीनिंग फ्लूइड्स बहुत कॉमन है, हाउस होल्ड एरोसोल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जो सारे इस तरह के मटीरियल्स हैं इनको हम इनहेलेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इनमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये सर्टन डेथ भी कॉज कर सकते हैं इंसान की, एंड दे माइट इवन लीड द पर्सन टूवर्ड्स ब्रेन डैमेज। ओके, हियर वी कम टूवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ ड्रग, और वो है पेन किलर्स। अब पेन किलर्स जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पेन किलर्स स्टार्ट वही है कि ये एक पेन किलिंग मेडिसिन के तौर पे स्टार्ट होता है एंड ग्रेजुअली इट एंटर्स इनटू द एडिक्शन फॉर्म। अब अगर यहाँ पेन किलर्स में आप थोड़ा सा देखें तो पेन किलर्स एक तो आर द पेन किलर्स विच आर कॉमनली करंटली यूज्ड, कि आज का जो यूज़ हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे वाले ज़माने में चले जाएं तो ये जो मॉर्फिन है, ये जो हेरोइन कॉमनली इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल जो इसका शुरू हुआ था वो एज पेन किलर शुरू हुआ था कि ये दर्द ख़त्म कर देते थे या ये दर्द को कम कर देते थे, बट लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू अ नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। तो ये हैं पेन किलर्स जिनका बेसिक फंक्शन जो है वो पेन को रिड्यूस करना या ख़त्म करना या कम करना है, बट लेटर दे हैव बिकम नार्कोटिक ड्रग्स एंड आर टेकिंग द पर्सन टूवर्ड्स द एडिक्शन। इसीलिए अगर आप आमतौर पर फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स पे जाएं तो इस तरह के ड्रग्स जो हैं, अब हेरोइन तो जो है वो पेन किलर इस्तेमाल होती नहीं, और कहीं मिलती भी नहीं है। मॉर्फिन के केस में ये होता है कि ये सिवियर जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें पेन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो उनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसकी बड़ी एक स्टैंडर्डाइज्ड और कैलकुलेटेड अमाउंट होती है जो कि कंसल्टेंट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिकल स्टोर अथॉराइज्ड नहीं होता ये ड्रग देने का। So this was the painkillers. By this we come to the end of today's class, and just to give you a quick recap, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया substance abuse disorders. We discussed the basic definition and description of the term, then we discussed the roots from where it's originating, then we discussed some signs and symptoms, how are you going to assess the addiction, then we discussed how are you going to assess intoxication, and how are you going to assess if the addiction is a recent one. उसके बाद हमने डिस्कस किए सम टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज विच आर कॉमनली फाउंड इन ड्रग एडिक्शन. So with this we come to the end of today's lecture. That was end of today's lecture. Meet you in your online class for further discussion. Thank you.